Okay, students. Visible and audible, right? Everything is clear? So, we have discussed about complement system briefly. Okay. Tell me, what is complement system? They are mainly, bolo, soluble protein. There are only 30 serum Yes. Soluble protein. First, soluble serum proteins. Megha, Manisha, and Sobik also. If you have the notes of cytokines, which I had shared earlier during the semester classes, right? तो प्लीज़ सेंड इन द ग्रुप बिकॉज मुझे नहीं मिल रहा है साइटोकाइंस का जो एक रिटर्न मटेरियल दिया था ना, अगर आपके पास हो तो ये भेज देना. सॉल्युबल सीरम प्रोटीन्स also glycoproteins, mostly they are produced by hepatocyte. Okay, and heat labile, they are heat labile, and that causes opsonization and killing of bacteria. Normally inactive, such as proenzymes and zymogens, which in presence of IgM and IgG becomes active in response to microorganism that triggers enzymatic cascade which further target membrane of microorganism and causes destruction. So major complement proteins that cause removal of antigen, they are C1 to C9. They are C1 to C9. Okay, and it is made up of two unit. Two unit, or you can call sub unit, whatever. A regulatory sub unit. Regulatory is smaller or larger? Bolo. Regulatory sub unit, smaller one, right? Smaller one. This is CA. Or catalytic subunit or larger one, जैसे CB. ठीक है. When both subunits are together, जैसे C1 plus CB, both subunits are together, means inactive state. अगर ये सेपरेट होगा ऐसे करके तभी ये एक्टिव होगा. तो ये इसका एक्सेप्शन भी है C2. C2 के लिए ये स्मॉलर होगा और ये বলছি কিছু লিখছো नहीं दिखाई दे रहा क्या? না পাচ্ছি না দেখা যাচ্ছে एक बार फिर मैं स्टॉप करके ऑन कर रहा हूँ. तो बोलोगे नहीं? ये पहले बहुत देर से मैं लिख रहा हूँ. দেখাচ্ছিল দাদা तो तो क्या हो रहा था? ওই মনীষার বোধহয় প্রবলেম হচ্ছিল একটু देखो ठीक है. হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে ओके, तो मैं क्या बोला कि C2 एक्सेप्शन है. ठीक है, C2 के लिए ये CB ए स्मॉलर सब यूनिट होता है और A जो होता है वो लार्जर, B होता है स्मॉलर और A होता है लार्जर. बाकी सब के लिए A स्मॉलर वन एंड B लार्जर है. ठीक है. फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट. फंक्शंस क्या होता है?
फैगोसाइटोसिस कैसे ना, ऑप्सोनाइजेशन के थ्रू फैगोसाइटोसिस में हेल्प करता है, राइट? सो इट विल ऑप्सोनाइज द एंटीजन मेनली C3b C4b. Inflammation, attracting macrophages and neutrophils. And membrane attack. जिसमें बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है वो डिग्रेड हो जाता है. C5b to 9 ये मैक फॉर्म करता है, जनरली ये मैक फॉर्म करता है, ठीक है. मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स ये फॉर्म करता है C5b to 9. अंडरस्टूड? समझ में आया ना? इसका 3 अलग अलग पाथवे है. 3 different pathways are there. One is classical pathway, second one is alternative pathway, and third one is mannose binding lectin pathway. Okay, एक alternative and lectin जो ये है it is antibody independent. It is antibody dependent. ठीक. और ये इनेट इम्यूनिटी के लिए काम करे, इनेट. और ये एडाप्टिव. ठीक है, चलो क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे. तो बोलो ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट है कि नहीं है? अभी भी डिस्कस किया. हाँ डिपेंडेंट. Yes, sir. Yes, it involves three major component: C1, C2, C4. ठीक. C1 has 3 subcomponent. C1q, C1r, C1s. Called as complex. Key regulator is C3 convertase, जो कि है C4b C2a. इसको बोलते हैं C3 कन्वर्टेज. ठीक है. जिस ये
ये किसको C3 को कन्वर्ट करके क्या क्या बनाएगा, C3b और C3a, C3a लार्जर, b स्मॉलर और लार्जर, 3 beta small, फिर 3 beta smaller. No. क्या बोल रहे हो, b क्या है, 8 small और beta large. तो क्या होगा इसमें, 3 beta large হবে আর 8 small হবে. so 3b which is larger fragment plays a role in opsonation. Okay, and smaller fragment plays a role in activating muscle, is causing the degranulation and release of histamines. ठीक है, चलो डिटेल में नहीं जाएंगे, एक मटेरियल जो क्लास नोट है मैं भेज दूंगा, सिर्फ पाथवे के ऊपर ध्यान दो। एंटीजन एंटीबॉडी का जो FC रीजन है उसे बाइंड कर रहा है C1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऐसे करके C4 एक्टिवेटेड हो रहा है, C4 जो है C4b C4a, ठीक है। तो एक सब यूनिट इसके साथ प्लस C4b, ठीक। कैटालिटिक सब यूनिट, रेगुलेटरी सब यूनिट पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके ऊपर C2, देन C2 का 2 मतलब C2a C2b C2a एंड C2b, लेकिन इसके केस में क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है। C2 के केस में उल्टा बोला था, ये सुनो हाँ. पहले ये बात समझो, 2 सब यूनिट है, ठीक है, रेगुलेटरी सब यूनिट एंड कैटालाइटिक सब यूनिट, ठीक है। तो इसके साथ क्या, कैटालाइटिक जो सब यूनिट ये जुड़ रहा है, तो इसका क्या होगा, कैटालाइटिक सब यूनिट कौन है, C2a होगा, ये सुनो। तो इसमें क्या हो जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी प्लस C4b 2a C2a और 2a लिख सकते हो, ठीक है। C2a ना करके सिर्फ 2a लिख सकते हो, ठीक है। तो वही है क्या, यही है क्या, C3 कन्वर्टेज, C3 कन्वर्टेज, यस। और वो C3 को क्या करेगा, C3 कन्वर्टेज C3 को C3a एंड C3b में ये इसको क्लिप करेगा, ठीक है। तो इसमें से क्या आएगा, C3b, तो अब हो गया एंटीजन एंटीबॉडी, ठीक, प्लस 4 C4b, यहाँ पे कौन, 2a प्लस C3b, ठीक है। और ये हो गया C5 कन्वर्टेज, ये होगा C5 कन्वर्टेज। तो देखो स्टूडेंट्स, C5 कन्वर्टेज मिल गया, तो C5 कन्वर्टेज C5 को क्लिप करेगा C5b एंड C5a में, ठीक है। तब C5b एक्टिवेट होगा और सीक्वेंशियली C6 C7 C8, ठीक है, इसके साथ C5b मिलकर मैक बनाएगा और बैक्टीरियल सेल लाइसिस होगा, ठीक है। देखो ये फ्लो चार्ट के थ्रू किसी भी जगह पे कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ। C5 টা ভাঙার পরে কি হবে বললে? C5 ऐसे ही C5b में और C5a में होगा, ठीक है, क्लिप होगा, C5b आएगा, वो सीक्वेंशियली C5b अगर क्लिप होने के बाद वो सीक्वेंशियली C6 C7 करके C9 तक
उसको क्या क्या करेगा, वो डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, मतलब सीक्वेंशियली उसको एक्टिव कर देगा। वो एक्टिव करने के बाद मतलब वही है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हम लोग बोले थे ना मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स एक फॉर्म होगा, जैसे मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे करके, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। ये ध्यान में रखो C5 कॉन्वर्टेज कैसे बन रहा है, C3 कॉन्वर्टेज कैसे बन रहा है, बाकी अपने आप हो जाएगा काम। और इसमें C3A C5B C5A इसका काम क्या है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। और मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं थोड़ा सा एक पॉइंट और जोड़ूंगा। ठीक है, समझ में आया ना, ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। उसके बाद मतलब कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे जुड़ रहा है इसके साथ कौन, C1 C1 FC रीजन में जुड़ रहा है एंटीबॉडी का, हाँ, ठीक है। उसके बाद C1 का बहुत सारे अलग अलग उसका सब यूनिट से हम लोग डिस्कस किए हैं। C1S जो है इट विल क्लीव C4, C1S जो है इट विल क्लीव C4। C1 का बहुत सारे सब यूनिट हम डिस्कस किए, सब यूनिट जो है C1Q C1R एंड C1S। C1S जो है इट विल क्लीव C4 and form C4A and C4B, and C4B it will bind to the microbial surfaces here, okay. And now C4B it will cleave whom, C2, C4B it will cleave C2, and C2A it will bind to the surface of this surface of microbe, okay. And then it will again, this is known as now C3 convertage, it will cleave C3 to C3A and C3B, and C3B is one kind of opsonins bind to the bacteria, and it will form now C5 convertase, okay. And C3-5 convertase cleave C5 to C5A and B, C5B is then sequentially activated C6, C7, C8 and C9, and then they all together form membrane attack complex and the lysis of bacterial cell, okay. Understood? समझ में आ गया? Yes or no? बोलो, पूरा क्लियर होना चाहिए, बोलो। Yes or no, students? ठीक है सर। Okay, so next one is alternative complement pathway. It is also antibody dependent or independent? Independent. Yes, antibody independent। इसके लिए कुछ फैक्टर्स है, ठीक है, जैसे फैक्टर इसको एक और बोलता है प्रोपरडिन, ठीक है। और पार्ट ऑफ innate immunity, antibody independent, the alternative pathway is slower than the classical pathway, okay. Molecules of C3 they undergo cleavage
low level. Okay, so some factor B, factor B, factor D, and factor P, 3 factors. So factor B क्या होता है? Factor B, the C3b on the surface of foreign cells bind to the plasma protein called factor B. Okay, C3 C3b हो गया, C3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, वो है फैक्टर, ये है फैक्टर B. ठीक है, ये C3b, ये है फैक्टर B. And this binding results in the exposure of binding site of another factor called factor D. एक और फैक्टर आएगा फैक्टर D. So फैक्टर D यहाँ पे बाइंड करेगा इसके बाद. तो C3b था और उसके साथ क्या था? फैक्टर B था. उसके बाद आया फैक्टर D जो BA को हटाया और यहाँ पे रखा सिर्फ C3b BB. ठीक है, तो B के BA और BB होगा, लेकिन BA को ये फैक्टर D ने हटाया, इसको सिर्फ C3BB. and it is now C3 convertage. It is now C3 convertage. Okay, उसके बाद आते हैं प्रोपर्टीन. प्रोपर्टीन जो है ये C3b and BB, इसको ये क्या करता है? स्टेबिलाइज करता है. ठीक, इसको ये स्टेबिलाइज करते हैं. और ये C3BBB जो है वो क्या करेगा? वो C5 कन्वर्टेज, सॉरी C5 कन्वर्टेज, वो C5 कन्वर्टेज है जो C5 को कन्वर्ट करेगा. ठीक है, चलो देखते हैं. So this pathway involves 3 main factors: factor B, factor D, and factor P. Factor interacts with C3 convertage, which initiates the cascade. Okay, cascade start with the hydrolysis of C3. स्टार्ट ही हो रहा है C3 से. Okay, तो लिपिड जैसे LPS, लिपोपोलीसेकेट ऑफ बैक्टीरिया, C3b इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ. ठीक है, C3 एंड फैक्टर D, ए फैक्टर B सेम. तो फैक्टर, उसके बाद फैक्टर D आया, फैक्टर D, C3 B एंड BB. ठीक है, उसके बाद फैक्टर P, और ये सीक्वेंसली एक्टिवेट करेगा C5, C6, C7, C8 एंड C9, जो कि मैक बनाएगा. सिंपल सा, जो कि मैक बनाएगा. अंडरस्टूड? समझ में आया ना कि नहीं? बोलो. बहुत इजी है. समझ में आया कि नहीं? बोलो. Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे याद रखना व्हाट इज फैक्टर D, व्हाट इज फैक्टर B एंड व्हाट इज फैक्टर P, एंड इसका इम्पोर्टेंस. तो ऑल्टरनेटिव, वी डन विद द ऑल्टरनेटिव पाथवे. C3 हो गई, C3. ठीक है, ऑल्टरनेटिव पाथवे. एंड नाउ लेक्टिन बाइंडिंग पाथवे और MBL. पाथवे ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है? Independent. यस. Okay, so lectins are protein that bind to the specific CB targets. ठीक है, so activated by, it is activated by the MBL lectin, binds to the managed residue, right? तो माइक्रोब्स का जो मैनेज रेसिड्यू है,
and MBL is quite similar with the C1q. Structurally C1q. ठीक. So activation कैसे हो रहा है? So activation is occurring by the binding of managed binding lectin onto the managed residue present on the pathogen. ठीक. Activation of serine protein MASP1 and MSP2 है. ठीक है. MSP1 and MSP2 managed binding serine प्रोटीज जो है 2. ठीक है. सो ये सेरीज प्रोटीज जो है दो MSP1 and 2 it occurs after binding which in turn activates C4 and C2 the forming C3 convertage. Okay, and the rest pathway is similar with the classical pathway. So first here mannose residue where in bacteria plus MBL MSP2 C4 क्लिप हो रहा है C4B C4A. so antigen MBL MSP1 and 2 MSP1 plus MSP2 plus C4B जो कि C2 को क्लिप करेगा. नाउ C4B 2A हो गया C3 कन्वर्टेज जो कि क्या करेगा एंटीजन MBL C4B 2A plus C3B. नाउ C5 कन्वर्टेज सिमिलर विथ नेक्स्ट मतलब वो जो फर्स्ट हमारा क्लासिकल पाथवे सिमिलर विथ क्लासिकल पाथवे. ठीक है. तो मैनोज रेसिड्यू बैक्टीरिया जो उसके साथ मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन कम किया है, साथ ही साथ दो प्रोटीन है, दो प्रोटीज है MSP1 एंड MSP2. इट विल गिव C4 to C4B एंड C4A. यू नो दैट C4B यहाँ पे चला आएगा. उसके बाद वो C2 को काटेगा. C4B किसको काटता है C2 को, और C4B 2A ये फॉर्म करेगा C3 कन्वर्टेज. तो C3 को वो काट देगा. उसके बाद C3B यहाँ पे जुड़ेगा जो है C5 कन्वर्टेज, और C5 कन्वर्टेज अल्टीमेटली सीक्वेंशियली एक्टिव करेगा C5 C6 ऐसे करके जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा. तो ये बिल्कुल सा कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, बहुत इजी है. ठीक है, समझ में आया ना ये चीज़? बोलो स्टूडेंट्स. ठीक है सर. ठीक, ये सब याद रखो.